Okay, we are live now. Good afternoon, everyone. We welcome all our dear learners to the Society and Media special lecture series with the subject matter expert. Today we have with us Nimish Kapoor sir from Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India. He will be speaking on the topic Society and Media, a Conceptual Understanding. Society and Media course is a Swayam MOOCs course which is sponsored by University Grants Commission that functions under Ministry of Education, Government of India. I would like to inform all our learners that lecture would be conducted in two parts. First, Nimish sir will share his insights for about 40 to 45 minutes, and the last 10-15 minutes will be dedicated to question and answer session. Learners can post their questions on the chat box. Now a brief introduction about our subject matter expert. Nimish Kapoor sir is working with Vigyan Prasad, Department of Science and Technology, Government of India from last 16 years. At present as Scientist E and Head of Publications Division, Science Films Division, and India Science Wire, Science News and Feature Services. He is also a Google certified trainer or fact verification. He is associated with planning and execution of national and international science film festivals of India. Flagship events of Vigyan Prasar conducted a series of national workshops on science filmmaking and science reporting, and various capacity building and skill development program for journalists and filmmakers on science communication. Earlier, before Vigyan Prasar, he has been associated with television as a television programmer with Zee Network, Inadu TV, Discovery Channel, and EMPC IGNOU joint projects. He has also worked as an anchor and a writer with Doordarshan and All India Radio for 7 years, and he has been part of the launch of the ETV regional channels. Associated as a member of decision-making bodies of Doordarshan, CIET NCRT, CEMCA, MHRD Central Hindi Directorate, among others. He has also been a guest faculty of Science Communication with Indian Institute of Mass Communication, IIMC, New Delhi, and other universities. He has been a recipient of Gold Medal 1997 for popular writing by Lucknow Christian College, Dr. Gorakh Prasad Memorial Award 2000 by Vigyan Parishad, Prayagraj, Allahabad, ISW National Award 2001 by Indian Science Writers Association, New Delhi, BioVed Best Journalist Award 2010 by BioVed Society, Allahabad, Vigyan Chetna Samman 2012 and 2013 by Vigyan Chetna Samiti, Uttar Pradesh. Recently, he has been awarded Distinguished Service Award 2013 by SBS RD Allahabad, Bharatiya Bhasha Pratishthan Puraskar 2018 by Bharatiya Bhasha Pratishthan Parishad, Mumbai. We welcome you, sir, and now you can share your valuable insights with us. Yeah, I'm sharing my screen, and thank you for my introduction. Just a minute. My screen is visible? Yes, sir. Thank you. Today, we will discuss about science and media, a conceptual understanding with special reference to scientific temper and social media. We are dealing media every day with newspapers, TV channels, and all. And we are also we have variety of social media apps, including Facebook, Twitter, WhatsApp, and Instagram, etc. तो हमारे पास मेन स्ट्रीम मीडिया एंड सोशल मीडिया दोनों मौजूद हैं और lot of and loads of information we have. Every kind of information, whether it is COVID-19 related, political, sports, and with this information, lot of misinformation, disinformation, rumors, and lot of fake messages kind of thing. We can say fake news is not a very appropriate word, but news which may be a pseudo kind of thing, or rumors and all. So we are dealing with this kind of situation where we are discussing about society and media, a conceptual understanding. Why a conceptual understanding is important of society
and media, or why a conceptual understanding of media is important for society, for a layman audience like us. So we have to understand about the three cultures, cultural distance model. And this model deal with three cultures. Culture of news source, it can be science lab, where our, for example, this corona vaccine scientists are doing R&D and all. And it may be political party, it may be sports ground, it may be ground zero for any kind of earthquake or any kind of disaster or any event. It may be hospital, it may be any market, mall, and so on. So source of news is can be treated as one culture. Another culture is culture of media. Suppose electronic media, TV channels, there is one culture. Newspaper has another culture. TV media is based on, television program rating, TRP, and newspaper is based on readership. And, both the industries are dependent on advertisement for their revenue generation. And media culture is talk about reporting, editing, writing, presentation, source of news, dissemination of news and all. And third culture is culture of society, means culture of us, readers, viewers, and listeners. What society read by the media, by newspapers, TV channel, क्या असर होता है, हमने जो भी सोर्स मिलता है मीडिया का, जो भी हम सोर्सेज की बात मैंने किया, एंड उसके साथ साथ जो दूसरा नंबर है कल्चर ऑफ मीडिया का, वो कल्चर ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो, व्हाट्सएप कल्चर, फेसबुक कल्चर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, राइट. एंड ये जो बीच वाला जो कल्चर है, कल्चर ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया, उसमें बहुत सारा फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन भी अपना पैर पसारता है. मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सच दिखाए, फैक्चुअल चीजों की बात करे. जो सोसाइटी में हो रहा है, मीडिया उसका आईना होता है, उसकी तस्वीर दिखाता है, उससे ज्यादा नहीं दिखाता. उस पर डिस्कशन कर सकता है, उसकी एनालिसिस कर सकता है, लेकिन उसमें अपना व्यू पॉइंट भी रख सकता है, लेकिन उसका कोई भी डिसीजन नहीं कर सकता. जो भी घटना हो रही है, उसका डिसीजन मेकर जो है, वो सच है, गलत है, झूठ है, या उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, ये डिसीजन होता है हमारा कोर्ट में. ऑनरेबल जो कोर्ट होता है, वो उसका निर्णय करता है कि उस अपराधी को क्या सजा दी जाए, उसने अपराध किया नहीं किया, ये सारा निर्णय हमारे कोर्ट में होता है. लेकिन हमने देखा आजकल बहुत सारे टीवी चैनल कहीं जज बन जाते हैं, कहीं वकील बन जाते हैं, कहीं पूरे पूरे कोर्ट भी बन जाते हैं. तो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज सामने आ रहा है हमारी सोसाइटी पे, हमारे लोगों पे, कि वो मीडिया पर कैसे यकीन करे, कितना यकीन करे, कब यकीन करे या कब ट्रस्ट ना करे. लॉट ऑफ थिंग्स जो हम आज डिस्कस करेंगे. तो तीसरा कल्चर जो सोसाइटी का कल्चर है, रीडर का कल्चर है, व्यूअर का कल्चर है, एंड लिसनर का कल्चर है. एंड it is responsibility of media to understand our society's culture, public understanding of things, public viewpoint of things, public sentiments, public emotions, public, a lot of panic जो है वो create हो रहा है मीडिया के जरिए. तो मीडिया को समझने की जरूरत है कि वो जो भी दिखाता है, उसका सीधा असर उसकी सोसाइटी पर, उसके दर्शकों पर, उसके व्यूअर्स पर भी होता है. कभी अच्छा होता है और कभी खराब होता है. तो मीडिया की यह जिम्मेदारी है कि वो खराब असर से लोगों को बचाए, चीजों को मिस कम्युनिकेट ना करे, जो हो रहा है उसी को दिखाए. लेकिन ऐसा होता कम है. आज का मीडिया बहुत कुछ बदल चुका है, व्यापार बन चुका है और एक पैसा कमाने की इंडस्ट्री बन चुका है. तो जो मीडिया जब शुरू हुआ था, महात्मा गांधी भी एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने भी अखबार निकाले थे. तमाम हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत से सोशल वर्कर्स, एक्टिविस्ट, आज से 100 साल 150 साल पहले की बात है, जब अखबार निकलने शुरू हुए थे, जब लिखना शुरू हुआ था, किताबें पब्लिश होना शुरू हुई थी देश में, तब जो ज़ील थी, जो एक हम कहें जो मैंडेट था, जो एम ऑब्जेक्टिव था, वो यही था कि हम सोसाइटी को इन्फॉर्म करें. लेकिन आज का जो मीडिया का मैंडेट है,
वो सोसाइटी को इन्फॉर्म करना तो है ही, सोसाइटी को एंटरटेन भी करना है और सोसाइटी से पैसा भी कमाना है। तो आज पैसा कमाने का मकसद सबसे ऊपर है, उसके बाद बाकी चीजें हैं। Why conceptual understanding of society and media is important? Bridging the gap between science से मायने है information, whatever new things happening in your society, in your labs, in your country's development and society. Inculcating scientific temper, think scientifically and act scientifically. When you are reading a news in a newspaper that vaccine is important for your child, or this corona vaccine is being developed by Indian scientists and Indian labs. So your thinking may be scientific thinking. You can be aware by the newspaper or TV report that Indian scientists are doing research on COVID vaccine, and you can enrich your knowledge about coronavirus, about vaccination, about medication, about other things, whatever development. So your thinking may inculcate towards scientific temperament. Think scientifically and act scientifically. यहाँ पर scientific temper से मतलब ये नहीं है कि आप साइंटिस्ट बन जाइए, आप केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ लीजिए. No, it is scientific temper means think scientifically and act scientifically. And this scientific temper हमें अखबारों को पढ़ने से, मीडिया में जो हमें नई जानकारी मिलती हैं उससे आता है, बशर्ते मीडिया की जो इंफॉर्मेशन है वो सही है, हमको मिस गाइड नहीं कर रही है, मिस कम्युनिकेट नहीं कर रही है, और हमारे पास भी एक साइंटिफिक टेम्पर होता है जो हमें अपने पेरेंट्स से, अपने सोसाइटी से, अपने फैमिली से मिलता है. हमारा इंडिजिनस नॉलेज, हमारा माइंडसेट, हमारा सोचने समझने की ताकत, वो कितना इंपॉर्टेंट है, हमें उसको भी जब हम मीडिया से डील करते हैं, जब हम मीडिया को पढ़ते हैं, मीडिया को देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें अपना साइंटिफिक टेम्पर अप्लाई करना है. एंड व्हाट इज साइंटिफिक टेम्पर? आपको एक मैं छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके जरिए आपको समझ में आएगा व्हाट इज साइंटिफिक टेम्पर. दिस इज अ स्टोरी ऑफ ए स्टोन फार्मर एंड इंजीनियर ड्यूरिंग 1980s इन सोनीपत. हुआ ये, सोनीपत में एक सड़क को चौड़ा किया जाना था और एक बहुत बड़ा सा पत्थर सड़क के बीचों बीच में रखा हुआ था. बहुत से पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स वहां पर आ रहे थे, मशीन लेके, क्रेन लेके, तमाम सारे एफर्ट्स हो रहे थे कि वो पत्थर को हटाया जाए, ताकि जब वो पत्थर हटेगा तब वो सड़क चौड़ी हो पाएगी. लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे. डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 नहीं कर पाए. एक किसान वहां पर रोज आता था और वो साइंटिस्ट से पूछता था, सर व्हाट आर यू डूइंग हियर? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाउ कैन आई बी हेल्पफुल फॉर यू? तो इंजीनियर कहते थे, तुम किसान हो, तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो. फिर दूसरे दिन आया, उसको भगा दिया गया. तीसरे दिन आया, फिर उसको भगा दिया गया. चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन जब इंजीनियर्स ने देखा ये तो रोज आ जाता है मेरे पास, हमारे पास, तो उन्होंने कहा, तुमको दिखता नहीं है, ये पत्थर हम नहीं हटा पा रहे हैं, जब तक ये पत्थर नहीं हटेगा हमारा काम नहीं हो पाएगा, ये सड़क चौड़ी नहीं हो पाएगी. तो किसान ने कहा, सर ये तो बहुत छोटी सी बात है, आप इस सड़क के नीचे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बना दीजिए और ये पत्थर उस गड्ढे में चला जाएगा और सड़क चौड़ी हो जाएगी. और ऐसा किया गया और किसान की बात हमारे इंजीनियर्स को समझ में आई और किसान के साइंटिफिक टेम्पर से वो पत्थर गड्ढे में गिरा दिया गया, एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बनाया गया और वो सड़क जो 7-8 दिनों से हमारे इंजीनियर्स और मशीनें नहीं कर पा रहे थे, वो एक किसान के साइंटिफिक टेम्पर से कर लिया गया. तो ये कहानी सुनाने का मतलब ये है कि हमें अपना एज ए सोसाइटी मेंबर, एज ए व्यूअर, एज एन ऑडियंस, एज ए लिसनर, हमें अपना साइंटिफिक टेम्पर हमेशा अपने साथ रखना है, अपने साथ लेकर चलना है. हमारा सोचने समझने का जो तरीका है वो इंफॉर्मेशन पर आधारित होता है, हमारी जो पहले की सूचनाएं हमें मिलती हैं उस पर आधारित होता है. और उस साइंटिफिक टेम्पर के चश्मे से हम अखबार को पढ़ें, हम टीवी चैनल को देखें, उस पर भरोसा करें. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम उस पर भरोसा ना करें, लेकिन आपको लगता है कि ये खबर गलत हो सकती है, ये सही नहीं हो सकता है, इस पे हमें और जानकारी चाहिए, क्या सही है क्या गलत, तो आप अपने साइंटिफिक टेम्पर का चैनल खोलिए, साइंटिफिक टेम्पर का अखबार खोलिए और आप प्राइमरी सोर्स पे जाइए, आप वेबसाइट्स पे जाइए, आप WHO की वेबसाइट पे जाइए, आप मिनिस्ट्रीज की, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री, साइंस मिनिस्ट्री, जहां से भी वो खबर आई है, आप उसकी वेबसाइट पर जाकर पुख्ता कीजिए कि वहां क्या कहा जा रहा है
और टीवी चैनल में क्या कहा जा रहा है, अखबार में क्या छपा है और उस वेबसाइट में क्या लिखा है। तो साइंटिफिक टेम्पर की तलवार आप लेके चलेंगे तो आपको सोसाइटी और मीडिया दोनों की समझ अच्छे से होगी और आप एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर तरीके से बना पाएंगे। आगे चलते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ न्यूज ऑन सोसाइटी या टू सोसाइटी। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? एक बार गुजरात में भुज के आसपास बहुत बड़ा भूकंप आया था और अखबार में खबर छपी थी, जो यहाँ ग्रीन कलर से आपको दिख रही है। अखबार में प्रकाशित हुआ, गरीबों का फ्रिज तबाह, भूकंप से बड़ी संख्या में घड़े नष्ट हुए। और एक गरीब कुम्हार था मनसुख भाई प्रजापति, जो घड़े बनाता था, मिट्टी के दिए बनाता था। उसकी आमदनी कुछ 100 रुपए रही होगी एक दिन में, या कुछ रुपए वो कमाता था। उसने सोचा कि ये जो गरीबों के फ्रिज बनाने की बात, यानी घड़े को एक पत्रकार ने गरीबों का फ्रिज कहा है, यानी कहीं पे उसको लगा कि ये हमारा उपहास भी हो रहा है और हमारे संग एक इमोशनल एक फीलिंग भी यहाँ पे दिखाई जा रही है कि हमारे फ्रिज तबाह हो गए, घड़े तबाह हो गए, हम जो हैं गरीब आदमी हैं और हमें परेशानी हो गई। अब उसने ठान ली कि मैं गरीबों का फ्रिज बनाऊंगा और उसने टेराकोटा की मिट्टी से मिट्टी कूल के नाम से एक फ्रिज बनाया, जिसमें पानी भरा जाता है और वो फ्रिज पानी से ठंडा रहता है। इसकी दीवारें जो हैं वो हॉलो हैं, उसमें जगह है, वहां पर पानी भर जाता है और आपकी फल सब्जियां और जो चीजें हैं खाने पीने की, वो हफ्ता 10 दिन कभी कहीं खराब नहीं होती। उसने ये फ्रिज बनाया, ना केवल फ्रिज बनाया बल्कि तमाम तरीके के प्रेशर कुकर, बर्तन, तवे, और आज की तारीख में दुनिया भर में उस गरीब कुम्हार के बनाए हुए फ्रिज और प्रेशर कुकर सप्लाई होते हैं। और जो मैंने हेडिंग दी है, फर्श से अर्श तक मनसुख भाई प्रजापति की वैज्ञानिक सोच, ये उस अखबार से पनपी, उस अखबार से निकली, उस मीडिया से बनी जो अखबार हम पढ़ते हैं। और आज वो मनसुख भाई प्रजापति करोड़पति व्यक्ति है, एक बहुत बड़ा उद्यमी है, जिसके फ्रिज पूरी दुनिया में सप्लाई होते हैं, जिसके प्रेशर कुकर, जिसके बर्तन पूरी दुनिया में सप्लाई होते हैं। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारे मीडिया का कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमको डिसीजन मेकिंग में सहायता होती है। जो खबर है वो सच दिखाए, जो तथ्य दिखाए, जो सत्य दिखाए, तो हम अपनी जिंदगी में खुशहाली ला सकते हैं, अपनी सोच को वैज्ञानिक सोच बना सकते हैं और अपनी ज्ञान की भूख को शांत कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमें मीडिया से मिलती हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारा संविधान कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। यानी हमारे आर्टिकल 51A(H) जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे संविधान में वर्णित हैं, उसमें स्मॉल ABCDEFGH 51A विद इन ब्रैकेट स्मॉल h ये कहता है कि हम भारत के लोग वैज्ञानिक सोच या वैज्ञानिक प्रवृत्ति को अपनाएं, मानवतावाद अपनाएं और सवाल जवाब पूछने की जो स्पिरिट है उसको जगाएं। तो ये हमारा संविधान में बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है और ये तभी आ पाएगा जब हम अपनी सोच को एक जागरूक सोच, एक वैज्ञानिक सोच बनाएंगे और वेल इन्फॉर्म्ड रहेंगे। हम मीडिया के संग जो उसका प्राइमरी सोर्स है, जो मैंने बताया, वहां जाएंगे, वहां पढ़ेंगे और अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। तब हमको ज्यादा समझ में मीडिया की बात आएगी कि मीडिया क्या कहलवाना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, कौन सी हम पे खबरें थोपना चाह रहा है या वो सच दिखाना चाह रहा है। एक्सेस टू द इंटरनेट हैज एक्सपेंडेड ग्रेटली। ये डाटा गूगल एनुअल सर्च इंडिया रिपोर्ट का है 2020 का, जिसमें कहा गया है कि 650 मिलियन लोग भारत में 2020 में ऑनलाइन रहते हैं एट ए टाइम। ये बहुत बड़ा डाटा है, जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है दुनिया का। पहले नंबर पे शायद जो है वो कौन सा देश है, एक बार आप पता करेंगे, वो चाइना है कि अमेरिका है। लेकिन जो दूसरे नंबर पे जो देश है वो भारत है, जिसमें 650 मिलियन लोग ऑनलाइन रहते हैं एट ए टाइम। और यहाँ पर गूगल सर्च करते हैं, 3 में से 2 लोग जो होते हैं, जो वो गूगल सर्च करते हैं, वो बड़े शहरों से बाहर के होते हैं। वो बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई से बाहर के लोग होते हैं, जो छोटे शहरों में रहते हैं, जो गांव में और कस्बों में रहते हैं। और लोकल लैंग्वेज में सर्च जो है वो बड़ी है, उसका दायरा 10x यानी 10 गुना बढ़ा है। हमारे लोकल जो भोजपुरी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु हमारी भाषाएं हैं, उसमें ये सर्च बहुत बढ़ गई है। मोर सर्चेज ऑन हेल्थ देन एजुकेशन, फाइनेंस, ट्रैवल एंड स्पोर्ट्स। हमारी जो सर्च के दायरे हैं
वो हेल्थ में, अब जैसे कोविड का समय चल रहा है पिछले 7 महीने से, जो खोज हो रही है गूगल पे, जो लोग देखते हैं वो हेल्थ से जुड़ी ज्यादा जानकारियां देखते हैं, कोविड से जुड़ी जानकारियां ज्यादा देखी जा रही हैं। ये भी इस रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है। तो अब हमें हम जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, साइंस, ये मीडिया एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड मीडिया का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का, तो हमको अपने ये अंडरस्टैंडिंग में लाना चाहिए कि हमारे देश में बहुत बड़ा दर्शक, पाठक, श्रोता वर्ग है जो ऑनलाइन रहता है, जो हर समय मीडिया के टच में रहता है। तो अब यहाँ पर यह और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है भारतीय मीडिया की कि खबर वही जो सच दिखाए, फैक्चुअल दिखाए, झूठ ना दिखाए, मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाए। नहीं तो क्या होगा? मॉब लिंचिंग, जिसमें बेगुनाहों का कत्ल कर दिया जाता है, झूठी अफवाहें वायरल होती हैं व्हाट्सएप पर और निर्दोषों की हत्या हो जाती है। ये सारी चीजें हो रही हैं, लोगों में भ्रम पैदा हो रहे हैं, पैनिक क्रिएट हो रहे हैं, लोगों का हार्ट फेल भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिनसे हमको बचने की जरूरत है। तो ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है। आपको ये जानना है कि आपका दर्शक, आपका श्रोता बढ़ता जा रहा है जो ऑनलाइन मीडिया को ग्रहण कर रहा है। खबर वही जो सच दिखाए, और हमारे देश में कहा गया है कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे साफ है। लेकिन क्या आज हर मीडिया, हर चैनल, हर अखबार सच ही बोलता है? यस, कोशिश करता है सच बोलने की, लेकिन कभी कभी गलती से झूठ भी निकल जाता है, कभी कभी गलती से मिस इन्फॉर्मेशन भी हो जाती है, कभी सोची समझी मिस इन्फॉर्मेशन होती है जिसे डिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, कभी र्यूमर फैलता है और कभी जानबूझकर गलत खबरें भी फैलाई जाती हैं। अगर हम कोविड की बात करें, कोरोना काल की बात करें, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एक खबर फैली कि हमारे सड़क पे, मोहल्ले में 2000 के नोट फैले हुए हैं जिनमें थूक लगा हुआ है, और थूक में वो कोरोना वायरस लगाकर यहाँ फैलाया गया है। यह र्यूमर था, यह मिस कम्युनिकेशन था जो चैनलों में दिखाया गया, टीवी में, अखबारों में छपा। जब इसकी जांच की गई तो पता लगा कि यह खबर झूठी थी, बेबुनियाद थी, और वो 2000 के नोट नकली नोट थे। वो बच्चों के जो बैंक होते हैं, जो झूठ मूठ के नोट होते हैं, बच्चों के खिलौने, खेलने वाले नोट, वो नोट थे जिनमें ये खबर, एक झूठी खबर प्रसारित की गई। तो ऐसे बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन, मिस कम्युनिकेशन और र्यूमर्स हमारे मीडिया के जरिए भी फैलते हैं। जो दारुल उलूम की खबर फैली यहाँ पर, जो दिल्ली में आपके निजामुद्दीन के पास खबर फैली कि वहां जो मौलवी हैं वो पूरे दुनिया से आए हुए हैं और वो कोरोना फैला रहे हैं। ओके, खबर ठीक थी, आपने दिखाई, लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक मौलवी साहब मदरसे के अंदर या मस्जिद के अंदर बैठकर झूठे चम्मचों में जो खाना बचा है या बर्तनों को झूठा कर रहे थे। ये, लेकिन उस वीडियो की जब जांच की गई तो पता लगा कि वो बर्तनों को झूठा नहीं कर रहे थे, वो झूठन को खा रहे थे। और ये वीडियो कोरोना काल से पहले का है, 2018 का था, जिसमें उनकी परंपरा के अनुसार वो झूठन को खा लेते हैं। वो मानते हैं कि जो अल्लाह का प्रसाद है वो मस्जिद के बाहर ना जाने पाए, वो वेस्ट ना होने पाए, और वो जो भी झूठन बची होती है उसको खा लेते हैं। तो ये खबर वही जो सच दिखाए, और झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे साफ है, कि जो संस्कृति हमारे देश में रही है, अब वो क्या काम कर रही है, हम देखते हैं। 2008 में क्या हुआ, जिनेवा के पास एक महामशीन का महाप्रयोग हो रहा था, अभी भी हो रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रयोग है जिसमें भारत के भी 250 वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, और इसमें एक ऐसे कण की खोज हो रही है। जब ये ब्रह्मांड बना, ये सृष्टि बनी, तो ये पृथ्वी जब बनी, तो सबसे छोटा कण कौन सा था, सबसे छोटा सूक्ष्म कण कौन सा था? वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटा था। वो उस छोटे से कण की खोज की गई है, उसी पर ये रिसर्च चल रहा है। 2008 में कुछ अखबारों ने एक गलत खबर छाप दी कि जब ये प्रयोग होगा, महामशीन का महाप्रयोग जिसे कहते हैं लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, जब ये प्रयोग होगा तो ब्लैक होल बनेगा और ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो एक छोटी सी बच्ची इतना डर गई कि उसने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। गर्ल सुसाइड ओवर बिग बैंग फियर। A girl in India has committed suicide after watching TV reports that a physics experiment could bring about the end of the world, her family says. 16-year-old Chaya poisoned herself at the home in the central city of Indore, her father Bihari Lal said. He said Chaya has been worried that world would end when the Large Hadron Collider was switched on. Some Indian channels held discussions about the European experiment featuring doomsday predictions.
जबकि ऐसा कुछ नहीं था। एक गलत खबर फैली और एक बच्चे की जान चली गई। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम अब कोविड की बात करें तो लोग सैनिटाइजर को खा रहे हैं, पी रहे हैं, उससे नहा रहे हैं, जो सारी बातें गलत हैं। सैनिटाइजर का प्रयोग अगर कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए होता है तो उसको आप हाथ में लगाइए, ताकि उसकी लिपिड की और प्रोटीन की जो लेयर है वो खत्म हो जाएगी और वो वायरस डीएक्टिवेट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो गलतफहमी लोग फैला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया 30 मार्च को 2020 को कि फेक न्यूज एंड पैनिक विल डिस्ट्रॉय मोर लाइव्स देन कोरोना वायरस पैंडेमिक। फेक न्यूज और पैनिक जितना हो रहा है वो बहुत खतरनाक है, वो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। तो अब लोगों ने उसको पीना शुरू कर दिया। सैनिटाइजर को छिड़कना, अपने शरीर पे स्प्रे करना खतरनाक है, जानलेवा साबित हो सकता है। सैनिटाइजर का प्रयोग केवल ठोस सतह के लिए होता है। आप हाथ में करिए, आप अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग में लगा लीजिए, मेज पे लगा लीजिए, लेकिन कम से कम आप उसको अपने नाक, कान, गले में मत छिड़किए। पीने के लिए नहीं है सैनिटाइजर। लोगों ने पी लिया और लोग की मृत्यु हो गई। तो ये सारी चीजें आ रही हैं। और ये 27-30 साल पहले बीबीसी ने खबर ब्रॉडकास्ट की थी कि पूरे देश में गणेश जी दूध पी रहे हैं और लोग गणेश जी को दूध पिलाने दौड़ के पहुंच गए। पूरे देश में कटोरी चम्मच लेकर टनों टनों दूध बर्बाद हो गया और वो सारा दूध नाली में चला गया, या कोई मूर्ति खोखली थी तो मूर्ति के अंदर भी चला गया होगा। वैज्ञानिकों ने 3 सिद्धांत समझाए थे: कोएसिव एडेसिव फोर्स, कैपिलरी एक्शन, सरफेस टेंशन। इन सिद्धांतों के बारे में आप और पढ़ेंगे इंटरनेट पर, किताबों में। कोई भी मूर्ति, कोई भी वस्तु दूध पी सकती है, हमको भ्रम होता है केवल। सरफेस टेंशन बनता है और दूध नीचे बह जाता है उस सरफेस से, सतह से, पृष्ठ तनाव जिसे कहते हैं। कैपिलरी एक्शन, जैसे हम मिट्टी के तेल में, जब लैंप में मिट्टी में जो बत्ती में तेल चढ़ता है, उसी तरह से कैपिलरी बन सकती है, उसमें दूध चला जाता होगा मूर्ति के अंदर। या कोई ऐसा छेद हो, सुराख हो, या एक कोएसिव एडेसिव फोर्स होता है। दूध तरल है, मूर्ति ठोस है, तो एक एडेसिव फोर्स लगता है और पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन लगता है और दूध नीचे बह जाता है। तो ये सब चीजें जब ऐसी हों, अगर मीडिया में दिखाई जाएं, तो आप सवाल पूछें व्हाई एंड हाउ। ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है? अगर गणेश जी ने कल दूध पिया था तो आज क्यों नहीं पीते? क्यों गणेश जी दूध पीते हैं, शंकर जी दूध क्यों नहीं पीते, ईसा मसीह दूध क्यों नहीं पीते? तो ये मूर्तियों की दूध पिलाने का जो एक पाखंड था, एक र्यूमर था, अफवाह थी, उसका वैज्ञानिकों ने खंडन किया था उस समय। और इस तरह की खबरें आज भी आती हैं जब कहा जाता है कि इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हुआ और नूडल्स पेट से निकाले गए, तो पता चलता है कि वो नूडल्स नहीं है, वो पेट के कीड़े हैं, राउंड वर्म्स हैं। लेकिन ये जब खबर प्रसारित हुई, जब मीडिया में आ गई, तो अपने हमारे जो स्कूल टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने बच्चों को नूडल्स खाने से रोक दिया, उन्होंने चाउमीन खाने से रोक दिया। लेकिन हकीकत क्या थी कि ये पेट का ऑपरेशन, इंटेस्टाइन का ऑपरेशन, जिसमें राउंड वर्म, पेट के जो कीड़े होते हैं, एस्केरिस होते हैं, वो निकले, ना कि नूडल्स। ऐसा असंभव है कि आपके पेट से ऐसे नूडल निकल सकें। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत सारे फैक्ट हैं। साइंस कम्युनिकेशन मीडिया में बहुत जरूरी है टू एड्रेस सोसाइटल इश्यूज। इंडिया किल्स 10 मिलियन गर्ल्स इन 20 years, मोर देन 10 मिलियन। ये पुराना डाटा है, आज की आप बात करेंगे तो और ज्यादा हो चुका होगा। टू कम्युनिकेट द फैक्ट दैट फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड। सेक्स जो है वो जो होता है वो बनाता है फादर, फिर फीमेल फीटिसाइड होता है। व्हाई मदर्स आर बीइंग किल्ड, जब पिता जिम्मेदार है। ये हमें लोगों को बात बताने की जरूरत है। हमें बच्चियों को बचाने की जरूरत है, क्योंकि बच्चियां ही समाज को जन्म देती हैं, हमारी सोसाइटी को जन्म देती हैं, जिस सोसाइटी की हम आज बात कर रहे हैं। तो ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरह की खबरों को बढ़ाए, इस तरह के लेखों को, इस तरह के एडिटोरियल को लिखे, ताकि लोगों में इन्फॉर्म डिसीजन फैले। टू फाइट द सुपरस्टिशन एंड रिलीजियस रिचुअल्स। बहुत सारे रिचुअल्स हैं। महिलाओं में, बच्चियों में जब पीरियड्स होते हैं तो वो रसोई घर में नहीं जा सकती, किचन में नहीं जाती हैं, वो मंदिर में नहीं जा सकती, वो पूजा नहीं कर सकती। ये कितनी बेकार की बातें हैं, इनका कोई संबंध नहीं है। पीरियड्स होना एक नेचुरल फिनोमेना है, उसको हमको समझने की और उस पर ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है, ना कि उससे छुपने की या शर्माने की जरूरत है। पैड्स का प्रयोग जब होता है तो इस्तेमाल किए गए पैड्स को किस तरह से नष्ट करना है ताकि वो आगे संक्रमण को ना फैलाए, उसको हमें लोगों को जागरूक और अवेयर करने की जरूरत है, उसको खत्म करने की जरूरत है। और इसमें मीडिया की बहुत अहम भूमिका हो सकती है और समाज को उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। तो यहां पर मैं जो कहना चाहता हूं वो सोसाइटी और मीडिया का बहुत अहम रोल होता है। जब हम अपने लाइफ का, अपने सोसाइटी का, अपने जो डिसीजंस हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो मीडिया बहुत हद तक सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है।
अब ये हमारे मीडिया में खबर आ गई, हमारे सोशल मीडिया में खबर आ गई कि ईटिंग अनियन कैन प्रिवेंट कोरोना वायरस, जो कि मिसलीडिंग है, गलत है। अब हम लहसुन या अदरक या हल्दी खाते हैं, हमारी सारी सब्जियां, वनस्पतियां हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, हमें ताकत देती हैं, हमें मजबूती देती हैं, लेकिन कोरोना वायरस से इनका कोई भी संबंध नहीं है। अगर हम अनियन खाएंगे और बाहर जाएंगे, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तो हमें कोरोना वायरस की चपेट में हम आ सकते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, ईटिंग अनियन कैन प्रिवेंट कोरोना वायरस। दिस इज नथिंग बट मिसलीडिंग। Aspirin can cure coronavirus infection. Actually incorrect. Aspirin is a medicine for any disease, but not coronavirus. This is not correct. Cow urine or cow dung can cure coronavirus. This is false and incorrect. क्योंकि जब भी कोई चीजें होती हैं, it must be scientifically validated. It must be published as a research paper, as a research study. Some scientist can ensure that he or she has done the research and now cow urine can cure coronavirus, but nothing happened. इस तरह का कोई रिसर्च अभी तक नहीं हुआ है, and this is false and incorrect. So be careful about these kind of pseudo news जो हमारे व्हाट्सएप में, अखबारों में और कभी-कभी चैनलों में भी आ जाती हैं. Gargling with salt water or vinegar prevent coronavirus infection. This is misleading because हम जब gargle करते हैं तो हमारे गले को आराम मिलता है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि वो कोरोना वायरस को खत्म कर सकते हैं या उससे हमें बचा सकते हैं. नो, दिस इज मिसलीडिंग. ये हमें गुमराह कर रहा है. साइंस ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर वर्सेस मेडिसिन ऑफ कोविड-19. अब कोविड-19 का समय है और 7 साल से हम इसको झेल रहे हैं, इससे परेशान हो रहे हैं. कभी अनलॉक है, कभी लॉकडाउन है और कभी वर्क फ्रॉम होम है, कभी इतने सारे आप लोग क्लासेस सुन रहे हैं लगातार अपने इंटरनेट, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर. और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि बहुत सी खबरों में बताया गया जो हमारी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, हमारा शहद है, हल्दी है, नींबू है, अदरक है, काली मिर्च है, च्यवनप्राश है, गिलोय है, गोगशुरू है एंड सो ऑन, ये एक मेडिसिन की तरह काम करती हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए, जो गलत है. ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. ये इनका कोई संबंध नहीं है कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए या वो संक्रमण को रोकने के लिए. तो हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, लेकिन कोविड से निपटने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना होगा. और जब वैक्सीन आएगी तो हमें वो वैक्सीन लगाई जाएगी, तब हमारे अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है. लेकिन ये जो औषधियां हैं, जो हल्दी है, जो नीम है, जो तुलसी है, वो एक हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं. हमारे ये औषधीय पौधे इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, ये कोविड का इलाज नहीं करते. ये हमको समझने की जरूरत है. अब यहाँ पर बहुत सी अखबारों ने कहा जो कोरोना वायरस है वो साबुन से हम धोएंगे हाथ या सैनिटाइजर से धोएंगे तो उससे वो मर जाता है. मैं आपको बता दूं कि वायरस को मर जाना कहना सही नहीं होगा, क्योंकि वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी है. वो ना तो जिंदा है और ना ही मरा हुआ है, वो एक उसके बीच की एक कड़ी है. और जब हम साबुन से हाथ धोते हैं तो वायरस को हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, यानी उसका जो वॉल है प्रोटीन की, जो लिपिड की, वो टूट जाती है और वो पानी के साथ बह जाता है. और जब हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो भी वो वॉल टूट जाती है. इसलिए कहा जाता है कि हमेशा पानी से, साबुन से हाथ धोइए. अगर साबुन और पानी नहीं है तो हम सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अन्यथा सैनिटाइजर का प्रयोग ना करें. पानी और साबुन का ही प्रयोग बेहतर है, ये WHO ने भी कहा है. अब ये जो कोरोना वायरस का साइज है, ये 80 से 120 नैनोमीटर है. बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत मजा आएगा. यहां पर हम जब छींकते हैं या थूकते हैं, खांसते हैं, तो हमारे जो थूक के कण निकलते हैं हमारे मुंह से, एरोसोल कहते हैं उसको, एरोसोल पार्टिकल, जो होते हैं 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी माइक्रोमीटर. माइक्रोमीटर होते हैं 1 मीटर का 10 लाखवां भाग. बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक एरोसोल जो होता है वो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग हो सकता है. और एक एरोसोल में बहुत सारे नैनोमीटर वाले कोरोना वायरस हो सकते हैं. तो ये कोरोना वायरस का जो साइज है 80 to 120 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁻⁹, यानी 1 मीटर का 1 अरबवां भाग, 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर इज नोन एज 1 नैनोमीटर.
तो ये 1 नैनोमीटर जो है 1 मीटर का 1 अरबवां भाग है, 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर, जो 80 से 120 नैनोमीटर का इनका आकार होता है एक कोरोना वायरस का। और इसको आप ऐसे समझिए, आपका जो एक सिर का बाल है जो यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, आप उस सिर के बाल को इतना मोटा करिए कि एक वो फुटबॉल का मैदान बन जाए। आपके सिर का एक बाल, उसकी मोटाई आप सोचिए कितनी पतला बाल होता है हमारा, उसको आप एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा करिए तो स्मार्टफोन के आकार का एक कोरोना वायरस होता है। फिर से सुनिए, अगर आप अपने सिर के एक बाल को उसकी मोटाई में फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा करेंगे तो एक कोरोना वायरस का आकार एक मोबाइल फोन के बराबर होगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये 80 से 120 नैनोमीटर कितना छोटा होता है, जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। 1 मीटर का 1 अरबवां भाग 1 नैनोमीटर कहलाता है। अब लोगों को सवाल चाहिए, क्या ये सवाल हमारा मीडिया दे पाता है? हमारे अखबार क्या साइंस को कवर करते हैं? हमारे अखबार क्या पॉलिटिक्स के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी कवर करते हैं जिससे हमारा ज्ञान बढ़े, जिससे हमारा नो हाउ बढ़े, जिससे हम जागरूक हों? अभी कोविड काल में ऐसी चीजें हुई हैं, मीडिया ने कवरेज किया है, कुछ ने सही किया, कुछ ने अदरक और तुलसी को इम्यूनिटी बूस्टर बताया, तो कुछ ने उसको कोविड की दवाई बता दिया जो गलत था। ये इम्यूनिटी बूस्टर है। उसी तरह से लोग जानना चाहते हैं कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल सही है कि गलत है, हमारी हेल्दी डाइट में क्या होना चाहिए, हमें अपने बच्चे को वैक्सीनेशन कराना है कि नहीं कराना है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड सेफ है कि अनसेफ है, हमारे नए शोध क्या हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन क्या है देश में, ये सारी चीजें हमारे मीडिया में हमको नहीं मिलती। व्हाट आर द इश्यूज दैट नीड टू बी कम्युनिकेटेड? अक्सर हमारे मीडिया से ये चीजें छूट जाती हैं, विदेशी रिसर्च कहीं छप जाती है, इंडिया में क्या रिसर्च हो रहा है हमको नहीं पता होता। Are we trying to give people information, change their attitude or alter their behavior? I am asking to media person. मैं मीडिया से पूछता हूं कि हम लोगों को क्या दे रहे हैं अखबार में? हम सूचना दे रहे हैं, हम लोगों का जो एटीट्यूड है उसको चेंज कर पा रहे हैं क्या? उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन, बदलाव ला पा रहे हैं क्या? हम ला सकते हैं, मीडिया ला सकता है। Do we want to engage our target group with two-way communication or simply inform them of what media is doing so that they passively support or do not resist it? Are our communication goal clear, realistic and achievable? ये सारी चीजें एक मीडिया पर्सन को अच्छे से पता होनी चाहिए। एक कोई भी कम्युनिकेटर, आप भी जब कोई कम्युनिकेशन करें, जो हम मुझे अभी सुन रहे हैं, तो आपको भी ये सारे सिद्धांत लागू करने होंगे अपने ऊपर। जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो प्रयोगशाला में मान लीजिए जो कोविड की वैक्सीन पर रिसर्च हो रही है, उसमें तलाश होती है व्हाई एंड हाउ। लेकिन जब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मीडिया में आती है तो उसमें सोसाइटी के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है 7 W's and 1 H. What, why, where, when, who, which, to whom and how. क्या, क्यों, कहां, कब, कौन, कैसे, किसके लिए। तो ये सारी चीजें हमें मीडिया के थ्रू बतानी होती हैं सोसाइटी को, और सोसाइटी के लिए इनको समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए कहीं कोई खबर छपती है कि आपके बच्चे के लिए वैक्सीनेशन सरकार फ्री में लगवा रही है, लेकिन ये खबर नहीं छपी कि वो कौन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फ्री में लग रही है, कौन से अस्पताल में वो डोज मिल रही है, ये तो पता ही नहीं लगता। अब बेचारा पाठक ढूंढता रहता है कि कहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है, ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमारे खेत के लिए बीज कहाँ से मिलेगा, ये नई टेक्नोलॉजी हमको कहाँ से मिलेगी, कौन वैज्ञानिक इसको बना रहे हैं, ये सारी चीजें हमको नहीं मिल पाती। इसका सोर्स क्या है, कौन से संस्थान इसको इसमें रिसर्च कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें नहीं मिल पाती। ये सारी चीजें जरूरी हैं, तब हम मीडिया को अच्छे से समझ पाएंगे और मीडिया हमें समझ पाएगा। ये एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग मीडिया और सोसाइटी को होनी चाहिए। और वैज्ञानिक और पत्रकार में जो अंतर है, जो सूचनाओं का स्रोत होता है वैज्ञानिक, और एक जो पत्रकार है जो अखबार में काम करता है या टीवी चैनल में काम करता है, उसके पास होते हैं 18 घंटे, 8 घंटे, 1 घंटे का समय। लेकिन वैज्ञानिक के पास होता है 18 महीने, 2 साल, जिसपे वो रिसर्च करता है। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज उसकी वैज्ञानिक भाषा होती है, लेकिन पत्रकार इज राइटिंग रियली फास्ट। एंड आइडिया ऑफ इंटरेस्टिंग आर्टिकल अबाउट कैंसर जो होता है वो ये होता है, लेकिन साइंटिस्ट फाइंड ल्यूकेमिया जीन, इज योर चाइल्ड एट रिस्क। वो ये बताता है कि भाई ल्यूकेमिया जीन तलाश ली गई है, आपका बच्चा रिस्क में तो नहीं है। ये जर्नलिस्ट आपसे बात करता है, सोसाइटी की बात आप तक पहुंचाता है। वैज्ञानिक के पास वो बातें नहीं होती हैं। तो यहाँ पर वैज्ञानिक और पत्रकार दोनों संस्कृतियों को समझिए, तब आपको ज्यादा अच्छा मीडिया की समझ होगी, और आप विज्ञान और मीडिया को समझ पाएंगे थ्रू योर न्यूज सोर्सेज, थ्रू योर न्यूज़पेपर्स एंड टीवी चैनल्स।
ये है थ्री कल्चर्स की, जिसकी बात मैंने आरंभ में की थी। ये एक रिसर्चर है जो सोर्स है, जो अध्ययन कर रहा है कोविड वैक्सीन पर उदाहरण के तौर पर, और जो जर्नलिस्ट है जो कम्युनिकेट करता है, और आप पब्लिक हैं, आप जो कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर हैं। ये तीनों जुड़े होते हैं आपस में, और इन तीनों कल्चर्स को समझने की जरूरत है। एक दूसरे को समझना चाहिए। रिसर्चर को पत्रकार को और पब्लिक को समझना है, पत्रकार को रिसर्चर और पब्लिक को समझना है, और जनता को रिसर्चर और जर्नलिस्ट को समझने की जरूरत है। और आप किसके लिए लिख रहे हैं, दिस इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन ऑफ सब्जेक्ट, है ना। ये मीडिया को समझ होनी चाहिए कि उसका पाठक कौन है, दर्शक कौन है, और ये बहुत जरूरी है। आस्क द राइट क्वेश्चन। आप एज ए पाठक सही सवाल पूछें पत्रकार से, और पत्रकार पॉलिसी मेकर से, वैज्ञानिक से, सोर्स से भी सही सवाल पूछे। अंटिल वी लर्न टू आस्क द राइट क्वेश्चन वी विल नेवर डिस्कवर द ट्रुथ। क्वेश्चन एवरीथिंग, ये कहा गया है लीजा विला फ्रॉसेन ने। यूज साइंस एज ए मिथ बूस्टर। अब ये कहा जाता है कि नाभिकीय ऊर्जा, जो नाभिकीय ऊर्जा है वो एटॉमिक बम की तरह काम करती है, बड़े खतरनाक होते हैं पावर प्लांट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहा जाता है कि आप एक परमाणु बिजली घर के अंदर 100 साल तक बैठे रहिए तो उतना ही रेडिएशन आपके अंदर जाएगा जितना एक बार एक्सरे में आपके अंदर जाता है, या एक केला खाने में आपके अंदर जितना रेडिएशन जाता है, उतना ही रेडिएशन 100 साल तक अगर आप एक परमाणु बिजली घर के अंदर बैठे रहेंगे, उतना ही रेडिएशन आपके अंदर जाएगा। परमाणु भट्टी जो आप देख रहे हैं, इसमें से धुआं निकल रहा है, ये धुआं नहीं है, ये वाटर वेपर है। जो परमाणु ऊर्जा बनती है तो उसको जो गर्मी निकलती है उसको पानी से ठंडा किया जाता है, और ये पानी भाप के रूप में उड़ जाता है। तो सबसे शुद्ध जो फॉर्म है एनर्जी का, वो सोलर एनर्जी है और एटॉमिक एनर्जी है, जिसमें किसी तरह का कोई कार्बन इमिशन नहीं होता। अगर हम कोयले से बिजली बनाते हैं तो इतना कोयला निकलेगा कि दिल्ली जैसे महानगर में अगर हम एक पहाड़ बना दें कोयले का, तो पूरा एक बड़ा इतना इमिशन होता है कोयले से निकलने वाला। उदाहरण के लिए, आप जितनी बिजली कोयले से बनाते हैं, अगर 27 मालगाड़ी भर के आप कोयला लाइए, 27 मालगाड़ी, और एक मालगाड़ी में 40 बोगियां होती हैं, 40 गुड्स ट्रेन फिल्ड विद कोल प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ए मारुति 800 कार फिल्ड विद यूरेनियम ओर। मारुति 800 कार जो छोटी सी होती है, उसमें यूरेनियम ओर एक तरफ रख दो और 27 मालगाड़ी कोयला एक तरफ रख दो, तो उन दोनों से उतनी बिजली बनेगी जितनी वो 27 मालगाड़ी कोयले से बनेगी। उतनी ही बिजली एक मारुति कार भर के यूरेनियम से बनेगी। तो ये, और इतना इमिशन कार्बन का निकलता है कोयले से बिजली बनाने में, जो यूरेनियम से और हमारे जो एटॉमिक पावर प्लांट है उससे नहीं निकलता। तो ये समझने की बात है। और हमें अपने कम्युनिकेशन को विजुअल से भरा देना होता है, ताकि हमारी सोसाइटी, हमारे जो मीडिया में चीजें पब्लिश हो रही हैं, उसको अच्छे से समझ सके, उसको आत्मसात कर सके, उसको एनालाइज कर सके। यूज अट्रैक्टिव टाइटल और हेडिंग। प्रकृति में उगते परख नदी में उगते जंगल, जैसे मैंने जो हेडिंग दी है नीचे, कोयले से हीरा बनाए, परमाणु ऊर्जा से बिजली, खेती और स्वास्थ्य सुरक्षा। तो ये सारी चीजें लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करेंगी। भाई, परख नली में जंगल कैसे उग सकते हैं? इसके लिए एक वैज्ञानिक विधि है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में पौधे का छोटा सा भाग लेते हैं, परख नली में डालते हैं, उसमें से पोषक माध्यम डाले जाते हैं, उसको ऑपरेशन थिएटर की तरह कमरे में बंद कर देते हैं, और वहां से सैकड़ों उभार निकलते हैं, और वो पूरा उभार एक पेड़ का रूप लेता है। यानी छोटे से पौधे से, छोटी सी परख नली में पूरा का पूरा 200-300 पेड़ का जंगल बन जाता है। तो ये समझने समझाने की बात। अमेज़न के रेन फॉरेस्ट जहां आग लगी हुई है, लंग्स ऑफ आवर प्लेनेट, इतनी ऑक्सीजन निकलती है कि इनको हम अपनी पृथ्वी ग्रह की फेफड़े की संज्ञा दे सकते हैं, फेफड़े का नाम दे सकते हैं। तो खूबसूरत टाइटल, लंग्स ऑफ आवर प्लेनेट। ये सारी चीजें जब होंगी, रेन शेडो जैसी परिभाषाएं हमको समझाने की जरूरत है। हम जब मीडिया में इसको कवर करें तो हमारा समाज तभी समझेगा जब हम इसको स्पष्ट तौर पर समझाएंगे कि रेन शेडो होता क्या है। अब रेन शेडो क्या होता है? पहाड़ के एक तरफ बारिश होती है, समुद्र है, बारिश हो रही है, और दूसरी तरफ शुष्क हवा है, ड्राई एयर है। तो वो जो ड्राई एयर वाला रीजन है वो कहलाता है रीजन ऑफ रेन शेडो। तो पूरी परिभाषा है इसमें। तो ये हमको मीडिया में पूरा मौका मिलता है कि हम अपने लोगों को अवेयर करें, रेन शेडो के बारे में पूरे से तरीके से बताएं। तो ये बहुत जरूरी है। हमारा मीडिया की जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो मीडिया के लोगों को और हमारे सोसाइटी के लोगों को मीडिया की, और मीडिया को जो सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग है, वो होने की जरूरत है कि हम जो बताने जा रहे हैं वो कितना गहराई तक, हम कितना लोगों की भाषा में उसको बता रहे हैं, कितना लोग समझ पा रहे हैं, कितना लोग अवेयर हो पा रहे हैं, ये भी समझने की जरूरत है। रिवर डॉल्फिन सोनार नेविगेशन करती है, यानी वो चिल्लाती है
आवाज करती है, उसकी आवाज एक चट्टान से टकरा कर जब वापस लौटती है, प्रतिध्वनि करती है, तो उसी प्रतिध्वनि को पकड़ने के लिए रिवर की डॉल्फिन फिर छलांग मारती है, फिर चिल्लाती है, फिर वो प्रतिध्वनि होती है, फिर वो उसको पकड़ने के लिए छलांग लगाती है। तो ये अद्भुत क्षमता है उस रिवर की डॉल्फिन में। और आप जब रिवर की डॉल्फिन पे कुछ मीडिया में लिख रहे हैं तो ये चीजें जरूर बताएं, ताकि आपकी सोसाइटी को उसकी समझ हो सके। उसी तरह से सूर्य ग्रहण जब होता है, टाइम लैंप्स इमेज, टोटल सोलर एक्लिप्स, अलग अलग समय अंतराल पे सूरज के चित्र खींचे जाते हैं, मीडिया में कवरेज होता है, और हमारे कुछ ज्योतिषाचार्य आकर बताते हैं कि जब सूर्य ग्रहण हो तो अपने अपने घर में बैठो, बाहर मत निकलो, जो गलत है। हमें सूर्य ग्रहण को देखना है, सुरक्षित तरीके से देखना है, सोलर चश्मा लगाकर देखना है, अपने घर के अंदर नहीं बैठना। सूरज को देखेंगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, सूर्य ग्रहण में देखेंगे तो भी आंखें खराब हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें मीडिया के जरिए हम सोसाइटी को समझा सकते हैं, और सोसाइटी इनको अच्छे से समझ सकता है। तो ये सारी चीजें, बहुत से अनुवाद में गलतियां होती हैं, उससे हमें बचने की जरूरत है। 20th सेंचुरी फॉक्स 20वीं सदी की लोमड़ी नहीं होता, ब्रायन लॉस अंधे कानून नहीं होते, न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय पुनः अभिनेता भी नहीं होता, चिक पी चूजे के खाने योग मटर नहीं होती, पिजन पी कबूतर के खाने योग दाल नहीं होती। ये सारी चीजें हमको समझने की जरूरत है। दोहरे शब्द वाले, दोहरे अर्थ वाले शब्दों से बचें। 5 अरब मारे गए या 500 करोड़ मारे गए, इनसे भी हमको बचने की जरूरत है। ये सोसाइटी में गलत संदेश जाता है, तो ये मीडिया को सही से पढ़िए, सही से समझिए। मीडिया बहुत सारी गलती करता है। 5 अरब मारे गए, अब 500 करोड़ मारे गए कि 5 अरबी नागरिक मारे गए। और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस में बहुत 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। हम हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे काम हो रहे हैं, उसको मीडिया को समझाना है, और आपकी सोसाइटी की समझ को हम बढ़ा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत से काम हो रहे हैं, बीटी ब्रिंजल पर काम हो रहा है। अगर कोई सवाल होगा तो आप हमसे जरूर पूछेंगे इसके बारे में। पॉपुलर राइटिंग ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत जरूरत है हमें अपनी सोसाइटी को समझाने में। हेल्थ इफेक्ट ऑन पोल्यूशन, हमारा पूरा शरीर खराब हो रहा है पोल्यूशन से, हमारे सारे अंग काम करना बंद कर देंगे थोड़े दिनों में अगर यही हालत रही पोल्यूशन की। बहुत सारे वल्चर हमारे मारे जा रहे हैं कि डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन हमारे मवेशियों को लगाया जाता है, और मवेशी जब मर जाती हैं तो उनके मांस को हमारे वल्चर्स खाते हैं, और गिद्ध, बाज, ईगल खत्म होते जा रहे हैं। राइटिंग ऑन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, राइटिंग ऑन इनोवेशन, फूड इरेडिएशन, पॉपुलर राइटिंग ऑन स्पेस, प्लेटफॉर्म फॉर साइंस राइटिंग, ये सारे अलग अलग बहुत सारे पत्रिकाएं हैं जो सोसाइटी तक विज्ञान की समझ पहुंचा रहे हैं, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। डाउन टू अर्थ है, विज्ञान प्रगति है, पर्यावरण ऊर्जा टाइम है, पर्यावरण विमर्श है, गोबर टाइम है, हमारा भूमंडल है, विज्ञान प्रकाश है, पर्यावरण पत्रिका है, ड्रीम 2047 है, तमाम पत्रिकाएं हैं। एंड एज नॉलेज इंक्रीजेस, वंडर डिपेंस। और ये एक फिल्म फेस्टिवल होता है जो विज्ञान प्रसार करता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये सोसाइटी से सीधा जुड़ा हुआ है, मीडिया की बात करता है। विज्ञानप्रसार.gov.in पर जाएं। अगर आप फिल्में बनाते हैं तो इस फिल्म फेस्टिवल का पार्ट बन सकते हैं। और फिलहाल मैं अपनी बात यहीं खत्म करूंगा, और मैं चाहूंगा कि अब आप कुछ सवाल हो तो मुझसे अवश्य पूछें। मोस्ट वेलकम, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस नाउ। Thank you so much, sir, for your sharing your wonderful insights into science communication. Your lecture talked about application of mind and scientific temper, which is very relevant for the infodemic that we are combating with the pandemic during these times. You talked about the fundamental duties, which is the important part of it is the duty of every citizen to develop scientific temper, and how you communicated beautifully that how many mistakes media makes in its reportage, and how we as readers should be aware about those mistakes, and how we can apply our own minds to counter such kind of misinformation or disinformation. Thank you so much, sir, for sparing your time. Now I will ask some of the questions. Yes, please. So the first question is, why do you think science communication remains confined to certain events? Like we only see science related communication during some launch of ISRO or when some big study comes up. Why it is not part of the regular feature of news? Yeah, very good question. And I would like to say that our media industry needs to understand the importance of science reporter and science news and science reporting, because in every newspaper and every media channel, TV channel, digital portals, we have no science reporter as such.
to be deputed or to be appointed for science communication or environment communication. Any political reporter or any sports reporter can cover science news. It is, very common perception in our TV channels and news industry. So we need to appoint regular press representatives, news reporters in our media houses. Number one. Number two, and very important point, number two is we need to start regular paper as a subject, science communication as a subject in our mass communication and journalism courses in our university system. When we include science, technology, health, environment, communication in our mass communication journalism courses at UG and PG level, then only our student will learn about the science reporting, science communication, science editing, how to write science, ISRO and all. Then only we can create atmosphere of science and health communication in our newspapers and media industry. My next question is, why do you think science communication workshops are necessary? Though you've answered a part of it in the earlier question, but I would add some of my points that do you think only workshops can help in such, creating awareness among journalists? Can only a workshop or a smaller module will help? Actually, I will give the answer in two parts. Part one is working journalist. If a journalist working in a newspaper or magazine, they have no time to attend a 1 year or 2 year course of science communication, right? So for them, for working journalists, 2-day, 3-day, 1-day workshop is okay. Is important, is essential to inject him or her the essence of science communication, the importance of science communication and reporting. But student of mass media, student of journalism, and UG/PG student and research scholars, they can attend not only workshop but some special courses are there in India. Lot of NGOs, lot of government institutions are running science communication courses. That courses can be attended by students. Learn communication. Quite frankly, people can die. It snowballed into this crazy. There is some background music noise. Yes, I don't know. Just a minute. Okay, my next question is, how do you check or stop fake news? What is ethical news in a society? Yeah, it is again a good question. Whatever news based on facts, based on fact and received from a primary source is a news, right? And anything which is not verified, no source verification, no factual verification, I don't think it may call as news. It may be misinformation or disinformation or fake kind of piece of information. So you must be awareful with these kind of misinformation is spread on our WhatsApp, social media platform, Facebook, Twitter handle and all. And sometime our mainstream media, our newspaper also covering this kind of medicine, corona medicine, without any quote, any source or any peer review journal. So I request to all learners, all listeners to cross-check every fact. Whatever factual information you are you are receiving from media, your social media, you please visit primary sources, official website, sorry, WHO website, ministry website, or some books, some journals. Then cross-check, speak to your doctors, speak to scientists, subject experts. Then cross-check your information you are receiving through your media. Okay. Next question is, what can be the perils of using digital media as the dominating media under the culture of society?
because we are seeing the proliferation of these fake news, misinformation, especially during these pandemic times on the social media itself. Can you summarize the question? Yeah, what are the problems that we are facing due to usage of digital media as the dominating medium for accessing news under the culture of society? Because today, dominantly or predominantly fake news and misinformation is generally through WhatsApp or Facebook. So, what are the other problems that we face when we use digital media? Actually, this digital media or social media is the widespread and big platforms are there, and our people are receiving news, maximum news from this digital media and social media, forwards and all. So here we have to be aware, and we have to be scientifically tempered to while reading these kind of news. As I earlier said, we have to cross-check every news from primary sources, from website. And the problem we are facing with this fake messages, pseudo misinformation, disinformation, the problem is major problem is mob lynching. Like we have seen in this Corona period, 2 sadhus and 1 driver were killed by the mob as mob lynching, as rumor was spread that they are कुछ बच्चा चुराने वाला हैं और like that. तो इस तरह का जो mob lynching है, issues है, और जो पैनिक क्रिएट होता है, पैनिक है, और जो एक डर है, भय है, वो क्रिएट होता है, कहीं पर झगड़ा होता है, लड़ाई होता है. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज है. ये कैसे खत्म किया जाएगा, हाउ टू स्टॉप to spread this fake misinformation and rumors? We have to delete these kind of messages. We can report to police, we can complain if we saw some if we watching some not good thing on some new science news channel or some TV channel or newspaper. We can register our concern to Press Council of India, TV Broadcaster Association of India, like that. So many platforms are there. Advertisement Council of India, for if we are seeing some advertisement कि ये क्रीम लगाएंगे तो ये काला से गोरा हो जाएगा, right? Some ये जूस पिएंगे तो energy boost होगा. So lot of fake news, fake messages are there in our advertisement also, and there is one separate council, Advertisement Council of India. We can register our complaint there, and they will act according to our concerned complaint, whatever. Okay, sir, this is my last question. Since you are a Google certified fact verification trainer, so can you give us some tips on how to check news information and especially images for facts? Yeah, this is a topic of a separate 1 hour session, but I can just share some tools and know-how. One is a fantastic tool is Google Reverse Image Search. Google Reverse Image Search is a fantastic tool to catch the, to verify the video and photos. You have to download the photo first and crop the subject of the photo. And you can take some still photograph from video and just crop the photo as per your subject, whatever subject you are searching, that the photo is correct or not. Then after cropping the photo, you can upload the photo in Google Reverse Image Search. You have to click on images on your Google page. After clicking on images, you will find a camera icon. You have to click on camera icon. After that, you will enter in the Google Reverse Image Search. There will be 2 options. One is paste image URL and upload an image. Then upload an image is a good option. You can upload an image, your cropped image, whatever you want to search. Then immediately Google Reverse Image will give you result, original image, source of the image, and what are the other fake sources, fake, non-trustworthy websites or channels where this fake picture was there, and whether photo is fake or not, what is the correct picture. Suppose a photo of Mahatma Gandhi with Dalai Lama, right? The photo of Mahatma Gandhi's Dalai Lama is correct, is only Mahatma Gandhi, no Dalai Lama, no child Dalai Lama.
So then somebody pastes the photo of the child Dalai Lama with Mahatma Gandhi. Then you have to crop Mahatma Gandhi at one and another part Dalai Lama. Then you have to search separate both the photos, and you will find that Mahatma Gandhi alone in the photo. In 1932, he visited UK, and UK Twitter handle of UK Prime Minister Office issued that photo. So that is how this Google reverse image search works. And another is InVid. InVid is a fantastic tool. InVid, Chrome extension you can type, and you can add InVid software to your Chrome, and InVid is a beautiful search engine for your video verification. So these are few tools you can apply for video and photo verification. Thank you so much, sir. Thank you for giving your valuable time to our learners. We really enjoyed, and we really got a lot of new points related to science, communication, and society, and how media plays an important role in both myth busting and giving us valuable information that we can really use in our daily lives, and to develop a scientific temper, which as a citizen, that is our duty. So we'd like to thank you for your valuable time and your understanding on the topic. Thank you, sir. Thank you all. Thank you all organizers, and thank you all learners and listeners. Thank you.